We write down the date. डेट लिखिए आज की. तो बेटा we were talking about meristematic tissues. Meristematic. First, I will tell you again. हमने first we come to type of cells. You know, undifferentiated, differentiated. These things, these type of cells, you know, we had discussed yesterday. And there are dedifferentiated cells. Dedifferentiated cells. So 9th A, roll number 22. 9th A, roll number 22. Yes, come near the mic. 9th A, roll number 22. चलिए, नहीं कोई बात नहीं, नहीं आ रहे कोई बात नहीं. यस, इधर से टुवर्ड्स लेफ्ट साइड फर्स्ट गर्ल आ जाओ जरा जल्दी से. आपकी तरफ से लेफ्ट साइड में फर्स्ट गर्ल है. आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से. कम नियर द माइक. टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द थ्री. Ma'am, please repeat the question. What is the difference between these three type of cells? Ma'am, undifferentiated cells means they perform specific functions. They do not perform specific functions. Differentiated cells means they perform specific functions. Yes. And dedifferentiated? Ma'am, I don't know. मैं अभी बता देती हूँ. Very good, very good. That's nice. बैठो बेटा. So undifferentiated, they divide. Yes. No specific function. Differentiated, दोबारा से लिख लो. Everybody write down. Differentiated, don't divide. Perform. Specific function. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मेरी बात सुनो कि हम जो है लेट अस से माय डिफरेंशिएटेड वर्क इज टीचिंग. ठीक है, मेरा काम जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो टीचिंग है. बाकी जो सारा काम है ना, हाउस होल्ड जितना भी कोई काम है, सम अदर पर्सन इज डूइंग. बट समडे इफ दैट पर्सन डजंट कम, आई मे फॉरगेट माई दिस स्पेसिफिक फंक्शन. मैं उस दिन अपनी क्लास ना लूं कुछ जरूरी, और अपने घर का बाकी का सारा काम करूं. अनडिफरेंशिएटेड वर्क, मैं वो सारा काम करूं. जो मेरा डिफरेंशिएटेड काम है वो मैं छोड़ दूं. Likewise, if the plant needs, everybody here, if the plant needs, then the differentiated cells sometimes they lose their specific function and start dividing. That is de-differentiated. Write down. Under some conditions, koi conditions that we will define later, the differentiated cells lose their specific function
and start division. So such cells are called as dedifferentiated cells. अनडिफरेंशिएटेड नहीं कहेंगे क्योंकि वो डिफरेंशिएट हो चुकी है एक बार तो, बट किसी कारण से ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, they lose their specific function and start dividing. They are dedifferentiated cells. Is it okay? I will explain you with an example. Done? Everybody done? Okay. So, types of meristem. इसी पर ही हम बात करते हैं. I had told you primary meristem and secondary meristem, because meristem में ये नहीं है बट बीच के चैप्टर्स में ये वर्ड्स दिए हुए हैं. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग. खाली एनसीईआरटी पढ़कर नहीं समझ में आता है. सेकेंडरी मेरिस्टम. सो टाइप्स ऑफ मेरिस्टम बेस्ड ऑन ओरिजिन. जो मैं येलो ग्रीन पेन से लिखती हूं, यू कैन अंडरलाइन इट. आपके पास डिफरेंट कलर के पेन नहीं होंगे बट यू कैन अंडरलाइन इट. सो व्हाट इज प्राइमरी मेरिस्टम? which are meristematic means जो डिवाइड कर रहे हैं फ्रॉम द एम्ब्रियो. वो वाले पार्ट्स प्लांट्स के, द रीजन्स ऑफ द प्लांट्स विच आर मेरिस्टेमेटिक फ्रॉम देयर ओरिजिन, फ्रॉम देयर बर्थ. जब उन सेल्स का बर्थ हुआ तब से वो मेरिस्टेमेटिक ही है, वो कभी डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, root apex and shoot apex. Root apex and shoot apex. Another are secondary meristems. It consists of dedifferentiated cells. मैंने dedifferentiation का मतलब तभी बताया था. Dedifferentiated cells formed by dedifferentiation. डिफरेंशिएशन को खत्म कर दिया, उल्टा कर दिया. dedifferentiation of permanent or differentiated cells. These are formed by dedifferentiation of differentiated cells. For example, one is vascular cambium and another is जो आपकी बुक में दिया हुआ है cork cambium. It is given in your book, that is cork cambium.
So this is primary, secondary. ये लिखो. As such, in this form, it is not given in your book, but it can be asked. 2 marks का क्वेश्चन है ये. नोट कर लो, स्टार डाल लो इसको. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम को. यहां पर इसके स्टार डालो. स्टार मीन्स इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एमसीक्यू में आ सकता है. कॉर्क कैम्बियम इज अ टाइप ऑफ. जल्दी जल्दी, क्विक. ठीक है, चलिए आगे बेटा. व्हेन आई सी समबडी राइटिंग तो फिर मेरा आगे जाने को दिल नहीं करता है. फटाफट से लिखो. अगेन आई एम टेलिंग यू के एडुकॉन ई लर्निंग. जो कुछ रह गया है उसमें नोट कर लो. राइट. देन वी कम टू यूट्यूब चैनल पे जाओ. के एडुकॉन ई लर्निंग. अपना डेट देखो, अपना स्कूल देखो, अपनी क्लास देखो, एंड यू कैन सी फ्रॉम दैट. सो नेक्स्ट इज types of meristem based on position. ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग दैट. हम इसमें जल्दी से आपसे ही पूछेंगे. देखिए, जल्दी से ये लिखो. आंसर आपने लिखना है. लिखिए जल्दी से. चलिए जी, एवरीबडी write down these 3 questions, fill up the blanks. आई एम गिविंग यू 2 minutes. इधर उधर नहीं देखना. कॉपीज नहीं निकालनी, बुक्स नहीं. जितना समझ में आया ओनली डू दैट.
चलिए, आई होप ये लिख लिया होंगे, इस पर फिलअप करो। एक हम और करते हैं। जल्दी से ये भी लिखिए। ये मैंने आपको बता दिया, ये कुछ टिश्यूज है। ये रूट एपेक्स कौन सा मेरिस्टम है, फिर प्राइमरी की सेकेंडरी। रीजन अबव नोड्स इन ग्रासेस कौन सा मेरिस्टम है, प्राइमरी की सेकेंडरी। फॉर केम्बियम, वुंड केम्बियम कौन सा मेरिस्टम है, देन प्राइमरी की सेकेंडरी। केम्बियम हमेशा साइड्स में होते हैं, राइट, वो साइड्स में होते हैं और गर्थ इंक्रीज करते, राइट, डायामीटर इंक्रीज करते। And in all the classes, roll number 6. Roll number 6 in all the classes. 6 roll number 9th A से हम शुरू करेंगे। 9th A, roll number 6. Yes, come near mic quickly. आ जाओ आगे आ जाओ बेटा। Tell me, the meristem present at the tip and increases height of the plant. What is the name? Apical meristem. Very good. बैठिए बेटा। It's apical meristem. 9th B, roll number 6. 9th B, रोल नंबर 6। माइक ऑन कीजिए जूम से। जूम से पहले बेटा स्क्रीन से, हाँ अब बोलिए। मेरिस्टम विच इज प्रेजेंट ऑन डैश इंक्रीजेस गर्थ। मतलब प्रेजेंट ऑन डैश मींस लेटरल साइड्स, एपेक्स पे, कहां पे प्रेजेंट है, Sides of stem. साइड्स ऑफ स्टेम या रूट्स, राइट, विच इज प्रेजेंट ऑन द साइड्स। बैठिए बेटा। which is present on the sides, increases girth and diameter of the plant, is called 9th C. 9th C, roll number 6, बताइए, it is called as। आवाज नहीं आ रही बेटा, मुझे चेक करो थोड़ा सा। somebody check it। हाँ जी, 9th C। आई होप आपने लेटरल बोला है, yes or no? yes बेटा, this is lateral meristem। lateral meristem। next 9th D। 9th D, हाँ जी बेटा, present on the nodes of the sugarcane is intercalary meristem। बैठो बेटा। intercalary meristem। 9th E, हाँ जी बेटा, and increases dash of plant। Ma'am, height or length?
Height or length of plant. Very good. Height or length of the plant. That is very good. I think everybody has written it. चलिए जी, 9th F. 9th F, रोल नंबर 6. माइक ऑन कीजिए, जूम से माइक ऑन कीजिए बेटा. रूट एपेक्स पोजीशन कौन सा? एपिकल. एपिकल मेरिस्टम. ओरिजिन भी बताइए. सेम स्टूडेंट. हाँ जी, टेल मी द ओरिजिन. प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? मैम प्राइमरी. प्राइमरी है बेटा, एम्ब्रियो से ही है. दिस इज प्राइमरी. रूट एपेक्स, शूट एपेक्स दोनों प्राइमरी है. बैठो बेटा. नेक्स्ट इज 9th G, रोल नंबर 6. 9th G, रोल नंबर 6. जूम से माइक ऑन कीजिए बेटा, जूम से ऑन कीजिए. मैम को जूम से ऑन करेंगे. हाँ जी, बोलिए बेटा. रीजन अबव नोड्स इन ग्रासेस. देखो, ग्रासेस है, शुगर केन है. ये जो शुगर केन की गांठें होती है ना, दीज आर नोड्स. इनके ऊपर मेरिस्टम है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम्म. मुझे आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं. डू यू नो? यस और नो? मैम मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है, कैन यू प्लीज चेक? चलिए, आप देखो जरा, माइक चेक करो कि क्या बात है क्या नहीं. 9th C. 9th C में रोल नंबर 12. 9th C, रोल नंबर 12 है नहीं. रोल नंबर 12 नहीं है तो 13 आ जाओ. अच्छा, 12 है तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से. वट एवर, 12 और 13. टेल मी, रीजन अबव नोड्स इन ग्रासेस. अबव और बिलो नोड्स इन ग्रासेस कौन सा मेरिस्टम है? और से बेटा देखो. अच्छा बैठो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है. डू यू नो द आंसर? चलो मुझे सुन नहीं रहा, या तो आपकी आवाज नहीं आ रही या आप आंसर नहीं दे रहे. हाँ, अब बोलो, थोड़ा सा नीचे करके बोलो. हाँ, नीचे करो, नीचे रख दो, नीचे रखो, नीचे रखो माइक. हाँ, अब बोलो. मुझे आ नहीं रही है मैम, ये चेक करना जरा. सो दिस इज इंटर कैलोरी मेरिस्टम. बैठो बेटा. दिस इज इंटर कैलोरी मेरिस्टम. बेटा इंटर कैलोरी का क्या बता? इंटरकैलेटेड, बीच में फंसा हुआ. यहां ऊपर भी डिफरेंशिएटेड टिश्यूज है, नीचे भी. बीच में फंस गया है मेरिस्टम, इसलिए इंटरकैलोरी मेरिस्टम. एंड दिस इज ऑल्सो प्राइमरी इन ओरिजिन. जितने भी केम्बियम्स है, मैंने आपको बताया, जो भी है वो सब प्लांट की गर्थ बढ़ाते हैं, डायामीटर बढ़ाते हैं, साइड्स पे प्रेजेंट है. तो दीज आर लेटरल मेरिस्टम. एंड आई हैड टोल्ड यू कि ये जो है ये सेकेंडरी मेरिस्टम है. आई हैड गिवन यू एग्जांपल्स. सेकेंडरी मेरिस्टम. ठीक है जी. बेटा जब टाइम हो जाएगा तो मुझे बता देना, क्योंकि आज मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं मुझे पता चल रहा. राइट? तो यू कैन टेल. सो दिस इज अबाउट मेरिस्टम्स. नेक्स्ट इज permanent tissues. Next is
कोलन काइमा, आप बताएंगे मुझे क्या बताएंगे कि ये लिविंग है और इज इट डेड? थिन और थिक वॉल्ड, यू टेल मी कि ये क्या है? Do they have intracellular spaces? And what are their functions? This is parenchyma. Another is collenchyma. Another is sclerenchyma. Fill this table because 3 marks. Very common question. Give differences between parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Fill it. जब ये 4 फीचर्स के बेस पे आपने करना होगा, इट विल बी इजी. Write down. I'm giving you 2-3 minutes. जिनके माइक्स नहीं चल रहे हैं वो प्लीज चेक करें ताकि हम उनसे भी बात कर सकें. रोल नंबर 27 की बारी है. अब हम किसको बुलाते हैं? वी विल सी दैट. इसलिए रोल नंबर 27 वाले बच्चे रेडी रहेंगे. नाइन्थ डी, बातें नहीं. डू योरसेल्फ, जल्दी से करो. चलिए हम बात आ जाती है नाइन्थ डी 27 रोल नंबर. आ जाइए. प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? अच्छा, प्रेजेंट है. चलिए जल्दी से बताइए बेटा, पेरेंकाइमा सेल्स लिविंग और डेड? अभी इतनी अच्छी आवाज आ रही है, अब आ नहीं रही आपकी. लिविंग है, बिल्कुल ठीक है. बैठो बेटा. नेक्स्ट इज रोल नंबर 23, सेम क्लास. नाइन्थ डी रोल नंबर 23, सेम क्लास. जल्दी से आ जाओ. कम क्विकली. मुझे बताइए कि कोलेनकाइमा लिविंग है कि डेड है? लिविंग है, बिल्कुल ठीक है. बैठो बेटा. नाइन्थ ए रोल नंबर 27. नाइन्थ ए रोल नंबर 27. कम क्विकली. 27 रोल नंबर्स. बी एक्टिव इन ऑल द क्लासेस. हाँ जी बेटा. टेल मी, स्क्लेरेंकाइमा लिविंग और डेड? खड़े होके बोलो, मुझे आवाज आएगी. जोर से बोलो. हाँ, डेड है, बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड. नाइन्थ ए में रोल नंबर 17. नाइन्थ ए रोल नंबर 17. यस. कोई बात नहीं, आप ही बता दो फिर आंसर मुझे. जो स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स है वो थिन की थिक वॉल्ड?
मैम थिक. थिक वॉल्ड है, वेरी गुड. दे आर थिक वॉल्ड. नैरो ल्यूमन, जो उनके अंदर स्पेस है. ल्यूमन का मतलब है जो सेल के अंदर, जब बॉल ही थिक हो जाएगी. आप सोचो कि आपके इस कमरे में, रूम में, इफ वी हैव थिक वॉल्स तो अंदर की स्पेस कम हो जाएगी. लाइक दैट हियर आल्सो. थिक वॉल्ड नैरो ल्यूमन. राइट. देन नेक्स्ट इज नाइन्थ. नाइन्थ ई. नाइन्थ ई रोल नंबर 27. नाइन्थ ई रोल नंबर 27. Yes. हाँ जी बेटा, बोलिए आप. कोलन काइमा, थिन की थिक वॉल्ड? Thick. थिक एट, डिफरेंशियली हम कहेंगे थिक वॉल्स एट कॉर्नर्स. थिक वॉल्स एट कॉर्नर्स ओनली, सब जगह नहीं है. थिक वॉल्स सिर्फ कॉर्नर्स में है. नेक्स्ट इज नाइन्थ ई रोल नंबर 10. नाइन्थ ई रोल नंबर 10. आ जाओ जल्दी से, क्विक क्विक क्विक, फास्ट. टेल मी पेरेंकाइमा. मैम थिन थिन. थिन वॉल्ड है, बिल्कुल ठीक. बैठो बेटा. इट इज थिन वॉल्ड. नाइन्थ बी. नाइन्थ बी बेटा अपना माइक ऑन कीजिए, जूम से माइक ऑन कीजिए. एंड 27 रोल नंबर आ जाइए. 27 एंड 15 नंबर आ जाइए. यस. टेल मी 27 रोल नंबर. इंटरसेलुलर स्पेसेस इन पेरेंकाइमा cells present or not? Space. Present or not? Present. Present in lot of intracellular spaces. Lot of intercellular spaces. कोलन काइमा. नेक्स्ट रोल नंबर एक मैंने और बुलाया था शायद. ठीक है. टेल मी कोलन काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट और नॉट? प्रेजेंट. प्रेजेंट बट फ्यू इंटरसेलुलर स्पेसेस. फ्यू. सेल्स के बीच में intracellular spaces. And this I will tell you, no intercellular spaces. Cells tightly packed. लिख लेना, cells tightly packed. Let me draw. ड्राइंग सबने करनी है. बायो विदाउट फिगर्स, विदाउट ड्राइंग इज नथिंग. इट इज बॉडी विदाउट सोल, है ना. बायोलॉजी में अगर डायग्राम्स नहीं बनाएंगे तो बायोलॉजी इज लाइक ए डेड बॉडी. सो दिस इज पेरेंकाइमा. छोटे बड़े सेल्स, लॉट ऑफ इंटरसेलुलर में सेल्स के इन बिटवीन जो स्पेसेस है, ये देखिए, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस. इनवॉल्व्ड सेल्स, lot of intercellular spaces. This is parenchyma. Then collenchyma. Cells are like this only, but they are thick at the corners. You can see that. मैं थोड़े different color से बना देती हूँ. यहाँ पे thickness है. So here thickenings you can see that यहाँ पे corners, यहाँ पे thickenings.
पूरा थिक नहीं है, ओनली एट द कॉर्नर्स। इस तरह से, वेयर एज इन स्क्लेरेंकाइमा cells are tightly packed, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं, एंड highly thick walled cells, इसलिए अंदर बहुत कम स्पेस रह जाती है। यू कैन ड्रॉ इट इन ऑल सेल्स, थिक वॉल्स, right? You can draw it in all cells, highly thick wall.